Good morning, everyone. This morning, I'm going to share things, but I'm going to share it in the context of my trip to Calcutta and what has been happening. आज की सुबह जो डोनाल्ड बांटने वाले हैं वो एक वचन तो होगा ही, लेकिन वो उस संदर्भ में होगा कि कलकत्ता में डोनाल्ड की ट्रिप में क्या क्या हुआ। You see, every trip, every journey, everything we undertake for God does not begin with our hearts. और कोई भी सफर हम अगर परमेश्वर के लिए शुरू करते हैं वो हमारे दिलों से शुरू नहीं होता है। It must begin in the heart of God. वो पहले परमेश्वर के दिल में शुरू होना चाहिए। And as we walk with Him and understand His purpose in our lives, और जैसे कि हम इस चीज को समझते हैं अपने जीवनों में what He wants us to do. कि हमें वो क्या चाहता है कि हम क्या करें। You know, there was an old song, it says, we used to sing, what is on your heart? Tell me what to do. और एक पुराना गीत जैसे कहता है कि हमारे दिलों में क्या है, परमेश्वर बता कि हम क्या करें। God reveals His purposes from His heart and transfers it to our hearts. और परमेश्वर अपने हृदय में जो चीजें और जो बातें होती हैं वो हमारे हृदय में वो ट्रांसफर करता है और कहता है कि अब तू ये कर। And this all doesn't come immediately like one big like download instantly. और वो एक ही बार में इस तरीके से जैसे कंप्यूटर में डाउनलोड होता है वैसे नहीं हो जाता। It will come step by step. We are moving forward. और little by little we are taking ground. और जैसे कि वो गीत भी है कि हम कदम से कदम आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके जमीन को लेते जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर की जो बातें हैं हमारे जीवन में होती हैं। And so also was this journey to Calcutta. और बिल्कुल इसी तरीके से जो ये कलकत्ता की जो सफर था वो वैसे ही था। Okay. A lot of people were saying when we went to Calcutta, oh, you have a heart for Calcutta. और बहुत से लोगों ने डोनाल्ड से कहा कि अच्छा आपका हृदय कलकत्ता के लिए धड़क रहा है। I said, no, Lord, I want to have a heart for you. लेकिन whether it's Calcutta or whether it's Malad or whether it's anywhere, it's about you. और डोनाल्ड ने इस तरीके से परमेश्वर से कहा, नहीं परमेश्वर, मेरा दिल आपके लिए धड़कना चाहिए, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो मलाड हो, चाहे वो कोई भी जगह हो। So when we begin, each one of us are saved and we are called for a purpose. और क्योंकि हम हर एक जन को बचाया गया है, हमारा उद्धार किया और हमें एक पर्पस के लिए बुलाया है, एक कारण के लिए बुलाया है। We can only be an unstoppable people if we go, if we move, if we advance ahead. और हम वो प्रकार के लोग जो कि आगे बढ़ते रहते हैं वो तभी हो सकते हैं जब हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे, हम कदम उठाएंगे। We can only be a chosen people if we understand what we are chosen for and embrace it. और हम जो है बुलाए हुए लोगों की तरह तभी काम करेंगे जब हम समझेंगे कि हमें क्यों बुलाया गया है। And it therefore must begin. और इसीलिए ये शुरुआत जो है that we are saved but not for ourselves. कि हमारा उद्धार तो हुआ है लेकिन सिर्फ हमारे लिए उद्धार नहीं हुआ है, We are saved for Him. क्योंकि हमारा उद्धार हुआ है उसके लिए। You can change to the second slide. I'm going to share slide. This morning's message will be slightly, how do you say, autobiographical actually. और आज की सुबह जो संदेश डोनाल्ड देने जा रहे हैं वो एक आत्मकथा जैसे होने वाली है। This thought of Calcutta didn't happen now. और ये जो कलकत्ता की जो सोच थी ये अभी शुरुआत नहीं हुई थी इसकी। It happened 28 years ago. 28 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। Okay. 28 years ago, I remember this Psalm 24 and verses, it's the whole Psalm, but it talked about the earth is the Lord's and the fullness thereof, and the world and all who dwell on it. And he talked about the Lord founding His throne upon the seas and establishing it on the rivers. और 28 साल पहले परमेश्वर ने डोनाल्ड को ये भजन से बात किया था, भजन संहिता 24:1-2, जो कहता है कि जो पृथ्वी है वो परमेश्वर की है और उसकी ही पूर्णता में है। He also went on to talk about opening the ancient gates, that the King of Glory may come in.
और ऐसी बातें भी परमेश्वर ने करी कि वहां पर परमेश्वर नए नए द्वार खोलेगा ताकि उसकी महिमा वहां पर आ सके। We were newly married. I think it was 29 years ago. This year we will complete 29 years of marriage, and we were just newly married. So it's more than 28 years ago God began to share this with us. और जैसे हम जानते हैं कि इस साल डोनाल्ड और सिल्विया 29 साल हो जाएंगे उनको शादी किए हुए, तो ये जो शुरुआत थी ये ऑलमोस्ट 29 साल पहले हुई थी, क्योंकि उनकी शादी हुई थी और वहां पर फिर वो गए थे। We were excited. We went for our training, year of training, or at that time. और जो 1 साल की ट्रेनिंग होती थी उसमें डोनाल्ड और सिल्विया गए थे। And somewhere in the middle of the training, God excited both of us about pioneering for Him. और ट्रेनिंग के मध्यस्थ में परमेश्वर ने डोनाल्ड और सिल्विया दोनों को ऐसा उत्साह दिया कि इन्हें कुछ शुरुआत करनी है परमेश्वर के लिए। And He began to speak these things. और ये बातें परमेश्वर इनसे करने लगे। This psalm was the first thing that He spoke. और ये भजन जो था ये सबसे पहली चीज थी जिसमें परमेश्वर ने बात करी। Did we understand it? No, we didn't. उस समय क्या इन्हें समझ में आया था? नहीं, इन्हें नहीं समझ में आया था। Okay. We all we knew is we were to go somewhere, which was the seas and the rivers, and that was it. और सिर्फ ये समझ में आया था कि हमें कहीं तो जाना है जहां पर नदियां हैं और शायद वहां पर समुद्र भी है। At that time, God spoke about, through my daily reading, He began to speak to me through the chapter in Ezekiel. और जब डोनाल्ड अपनी खुद की बाइबल स्टडी कर रहे थे तो उसमें परमेश्वर ने यहेजकेल से बात नहीं कर रहा था, मैं समय बिताता हूँ परमेश्वर के साथ, जहाँ पर परमेश्वर को बात करने देती है, जैसे मैं बाइबल पढ़ता हूँ, तो प्रभु के साथ एक बाइबल का मनन करना। So he was meditating with God at that time. And these were the two chapters, 43 and 44, and they're very complicated chapters. और यहेजकेल 43 और 44 से परमेश्वर ने बात करनी शुरू करी डोनाल्ड से। It's about the man, a man coming and taking Ezekiel, and they are measuring a temple. और यहाँ पर जब परमेश्वर बताता है कि ये 2 इंसान जो है यहेजकेल को लेके जाते हैं और जो मंदिर का नाप लेना शुरू करते हैं। And in that, there were certain verses that just came out like this and hits you, right? And you write them down because you know this means something, even if you don't understand it. और जब वो मनन कर रहे थे तो कुछ वचन उसमें बाइबल में से निकल के आने लगे और वो उस समय जो है दिल से बात करने लगे। उस समय नहीं पता था क्या है, पर पता था कि कुछ तो है। So I'm just putting that up. 43 verses 2 and 3, which was the first verse that hit. और यहेजकेल 43 का 2 और 3 जिससे पहली चीज ने बात करी। Not in the PowerPoint, Eunice. Can you just put it up? Okay. And it said, and behold, the glory of the God of Israel was coming from the east. And the sound of his coming was like the sound of many waters. And the earth shone with his glory. And the vision I saw was just like the vision that I had when he came to destroy the city, and just like the vision I had when he was sitting on Sheba. It was the first verse. It was this glory of God coming from the east. I was like saying, God, he said, I want to bring my glory from the east. I want to go east. And he kind of left this in our hearts. And we both knew east. और तब जब डोनाल्ड ये वचन पढ़ रहे थे, इसमें लिखा है कि तब इजराइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की गड़गड़ाहट सी हुई। कहीं ना कहीं डोनाल्ड को ये लगा और सिल्विया को लगा कि कुछ तो परमेश्वर करने वाला है और पूर्व से जो डायरेक्शन है जो बताया परमेश्वर ने वहां से कुछ है। But we also knew, I mean, we were very excited, and we took counsel at that time, and our elder said, no, wait, you are not ready for something like this. You're not going anywhere. और इस समय पे जब वो उनके दिल में ऐसी बात चल रही थी, परमेश्वर बात कर रहा था, तो उन्होंने अपने अगुओं से कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी रुको, अभी समय नहीं आया तुम्हें कहीं जाने का। The word was the word Kolkata was still not on our minds. और कलकत्ता जो शब्द था अभी भी इनके दिलो दिमाग में नहीं था। And then later on in Ezekiel 44 verses 1 and 2. और फिर जब यहेजकेल के 44 के अध्याय में एक और दूसरा वचन देखते हैं। And he said this to us. और फिर परमेश्वर ने ये कहा, Then he brought me to the outer gate of the sanctuary, which faces east, and it was shut. और फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया जो पूर्व मुखी पर है, और वो बंद था। And then the Lord said to me, और फिर परमेश्वर ने कहा, This gate shall remain shut. और ये फाटक बंद रहे और खोला ना जाए। It shall not be opened. वो खोला ना जाए। And no one shall enter by it. और कोई इस
ना पाए। For the Lord God of Israel has entered by it, and therefore it shall remain shut. क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है, इस कारण वे बंद रहेगा। And it brought rest to us because we said, all right, Lord, you shutting the gate. और हमें जो है We're उस not समय दिल में ऐसा supposed to go anywhere yet. उस समय दिल में ऐसा आराम आया कि हाँ परमेश्वर आपने ये दरवाजा बंद किया है, इस समय हमें कहीं जाने की But जरूरत you नहीं will है, continue to work in the east. लेकिन आप जो है वो पूर्व की दिशा में काम करते रहेंगे। And then he further spoke from 44 verse 4 to me. और फिर वापस परमेश्वर ने यहेजकेल 44:4 से बात किया And he said, और उन्होंने कहा, and then he brought me by way of the north gate to the front of the temple. और फिर ये वह उत्तरी फाटक के पास होकर मुझे भवन के सामने ले आया। And behold, the glory of the Lord filled the temple of the Lord, and I fell on my face. तब मैंने देश की यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भर गया है और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। And I felt that God would one day take me not east but north. और फिर डोनाल्ड को लगा कि हाँ परमेश्वर चाहता है कि पूर्व दिशा नहीं पर उत्तर दिशा में परमेश्वर चाहता है कि डोनाल्ड काम करे। It will be in front of the whole temple, in front of the church. और ये पूरी कलीसिया के सामने था। And it will be from there the glory of God will fall on me, and I will know the time to move. और वहां पर परमेश्वर की महिमा जो है वो बहुतायत से आएगी कलीसिया पे और डोनाल्ड पर, और परमेश्वर अपना काम आगे करेंगे। And so we waited, and then many years later we went north. और फिर हमने इंतजार किया और कुछ सालों के बाद उत्तर दिशा में हम आगे बढ़ने लगे। I was very excited when I went north because the word of prophecy that talked about the north. और बहुत उत्साहित हो गए जब परमेश्वर की बुलाहट और परमेश्वर का वचन आया उत्तर दिशा के बारे में। I will give you victory in the north and the east. और तब जब भविष्यवाणी का वचन आया था कि आपको विजय मिलेगी उत्तर में और पूर्व दिशा में। And I said, Lord, you're starting north, but you're taking us east. और डोनाल्ड ने ऐसा परमेश्वर से कहा कि हाँ परमेश्वर आप उत्तर दिशा की शुरुआत तो कर रहे हैं लेकिन आप हमें पूर्व में भी लेके जाएंगे। And then the Psalm 24 second half made sense. Open, you gates, or you ancient doors, that the King of glory may come in. और फिर भजन संहिता 24:4 का वचन जो है वो सामने आने लगा कि हाँ परमेश्वर के फाटक जो है वो खुले हैं और उसके लोग उसके अंदर से जाते हैं। And now I may all sound like I'm saying, but this is like 2-3 year time with God, okay? और ये ऐसा नहीं है कि अचानक से हुआ, इस दौरान 2 से 3 साल गुजर गए थे। During this period, Sylvia had a dream. और इस दौरान सिल्विया को एक दर्शन आया, And in dream, एक स्वप्न आया। and in the dream, we were on a boat leaving from the shores of Kolkata. और ऐसा स्वप्न था कि डोनाल्ड और सिल्विया एक नाव में हैं जो कलकत्ता के एक नदी के से निकल रही है। And Nigel and another leader who led that movement was saying goodbye to us. और नाइजल हैं और साथ में कोई और है जो उनको बाय कर रहे हैं। And we knew a day will come when we must go, and we must start our journey in Kolkata. और हमें फिर लगा कि ऐसा एक दिन आएगा जहां पर हम अपना सफर मुझे आपको अपना राजा ऐलान करना है। And if I make you a king, then my life, what I eat, what I drink, what I wear, where I go, whom I marry, how much, what my dreams are for money and future, they don't belong to me anymore. They belong to you,
और जब मैं परमेश्वर को अपना राजा ऐलान करता हूं तो मैं क्या खाता हूं, मैं क्या पहनता हूं, मैं कैसे रहता हूं, मैं किससे शादी करता हूं, मैं क्या काम करता हूं, ये सारे सपने सिर्फ मेरे नहीं रहते पर उसके हो जाते हैं। Not even my family, not even my children are mine. और सिर्फ मेरा परिवार, मेरे बच्चे भी मेरे नहीं हैं। One day you will ask me, आप एक दिन मुझसे पूछेंगे what have you done with the children I gave you? कि तुमने उन बच्चों के साथ क्या किया जिन्हें मैंने तुम्हें दिया था। Because all authority in heaven and earth, you have said, is given unto you, that is Jesus. क्योंकि सारा अधिकार परमेश्वर यीशु मसीह को दिया गया था। And what he says is, I've called you to be part of my business. और यीशु ने हमें उसके व्यवसाय का भाग बनने के लिए बुलाया है। And so my first point this morning is, we are about the king's business. क्योंकि हमें बुलाया गया है कि हम सब परमेश्वर यीशु मसीह के व्यवसाय का भाग बने। And what does it mean? और इसका मतलब क्या है? That every one of us, you, me, all here, and all those who call themselves by the name of Jesus, और मैं, आप और वो सब लोग जो यीशु के नाम से अपने आप को बोलते हैं कि हमें बुलाया गया है, have been consecrated and set apart through our salvation for a great purpose. कि हम सब का उद्धार किया गया है, हमें अलग किया गया है ताकि हमें एक बड़े चीज के लिए बुलाया गया We है। have been called to be a part of the king's business. और हमें बुलाया गया है कि हम वो राजाओं के राजा का व्यवसाय संभालें। Paul writes, when he's standing in court, he says to King Agrippa in the book of Acts, he says, I was not disobedient to the heavenly vision. और जब प्रेरितों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि वहां पे वो कहता है कि मैं आपके बातों को मैंने ठुकराया नहीं परमेश्वर। This thing may have happened 28 plus years ago. ये चीज जो डोनाल्ड ने आज बताई है कुछ 28 साल पहले हुई थी। But I also remember at my marriage, he said, I'll give you a blueprint for my life, but I'll reveal it to you step by step, not all at once. और परमेश्वर जिस तरह से काम करता है उसने ये कहा कि मैं तुम्हारे जीवन के लिए एक ऐसा मैप दूंगा, लेकिन मैं सारी चीजें एक साथ नहीं बताऊंगा, मैं एक एक करके बताऊंगा। God has a blueprint for each one of your lives. I don't know what it is he does, because it is coming from his heart. और परमेश्वर ने हर एक जन के लिए एक ब्लूप्रिंट यानी कि एक प्लान जो है बना के रखा है, क्योंकि वो उसके हृदय से निकलता है। And he will reveal it to you step by step. और वो आपको ये सारी चीजें बताएगा, लेकिन कदम कदम पर। But you will only see it आप उसे तभी देख पाओगे when you say, I am about the king's business. I consecrate my life. I'm willing to take the next step ahead. और आप उसे तभी देख पाओगे जब आप ऐसा कदम उठाते हो और कहते हो कि हाँ परमेश्वर, मैं आपके राज्य और आपके व्यवसाय के लिए काम करना चाहता हूं, अपने आप को अलग करना चाहता हूं। Because Jesus said, no two people can walk together unless they agree. और जैसे परमेश्वर बाइबल में कहता है कि कोई भी दो लोग साथ में नहीं चल सकते जब तक वो एक दिमाग एकजुट नहीं हो जाते। And unless we agree that his dreams will become our dreams, his calling will be our calling, our children, whatever we do, our lives, our future, the money we earn, all is his, and we agree and walk together, then we can go about the king's business. और जब हम और यीशु इस बात पे अग्रीमेंट नहीं करते, साथ सहमत नहीं होते कि हम एक साथ चलेंगे, हमारा व्यवसाय, हमारे बच्चे, हमारी नौकरी, सब चीज प्रभु आपकी है, तब तक यीशु हमारे जीवन में काम नहीं कर सकते। And then he will show you. और फिर वो आपको दिखाएंगे। That is why I shared what I shared this morning. और इसीलिए मैंने आपसे बांटा जो आज सुबह बांटा। There comes a time when a door opens. एक समय आता है जब एक दरवाजा खुलता है। It's like Paul standing again in the book of Acts, not knowing what to do next. और ये उस तरीके से जब पौलुस प्रेरितों की पुस्तक में खड़ा था, उसने नहीं पता था कि आगे क्या करना है। You know, and Paul has a vision. Most people are looking for visions, but God has different ways of speaking. It could be through a vision, it could be a person's word, it could be through the Bible, it could be just by a advertisement on the road. और बहुत से लोग जो हैं एक परमेश्वर की एक ऐसा विजन के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन परमेश्वर अलग अलग तरीके से बात कर सकता है। किसी से वो दर्शन से बात करेगा, किसी से वो बात से बात करेगा। Always wait for this word, come. और हमें इस बात का, इस शब्द का हमेशा इंतजार करना है जब परमेश्वर कहता है आओ, Come and help me. और आओ मुझे मदद करो। परमेश्वर इस शब्द का इंतजार करता है। When 2.5 years ago, there was this two guys from Calcutta who said, come, we are starting something. And we went, and I felt I knew God was saying, come. और जब 2-2.5 साल पहले दो लोग जो कलकत्ता से आए थे, उन्होंने कहा था कि आइए हमारी मदद कीजिए, तब डोनाल्ड को दिल में लगा कि हाँ परमेश्वर कह रहा है कि हाँ बुला रहा है, आओ। So it's all done in peace and in faith.
और ये सब काम जो होता है वो विश्वास में और शांति में ही होता है। And then as you go, he'll further tell you what to do. और फिर परमेश्वर आपको अगला कदम बताएंगे, क्या करना है वो बताएंगे। I mean, the first time I was going to Kolkata, I remember Des coming to me and said, Donald, I feel God wants you to go for 2 months. और पहली बार जब डोनाल्ड जाने वाले थे तो डेस जो हैं वो डोनाल्ड के पास आए, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है डोनाल्ड कि तुम 2 महीनों के लिए जा रहे हो। And I knew it was of God, because I knew God was saying to me, he was saying 2 years, but he said 2 months, and I said, thank you, you're at least making it easier. और डोनाल्ड के दिल में ऐसा था कि परमेश्वर शायद 2 साल के लिए भेज रहा है, लेकिन जब डेस ने आके कहा तो कहा धन्यवाद परमेश्वर, 2 महीना ठीक है। But I was not willing to go for 2 months, and not immediately. How do you just go for 2 months? और डोनाल्ड जो है इस तरह की प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि हाँ परमेश्वर 2 महीने के लिए मैं जा रहा हूँ, अब ऐसी कोई प्रार्थना नहीं थी, ऐसा कोई दिल नहीं था। But I went for that, what was it? I think 1 week or 6 days, 5 days. And God began to show me different things, which I will share as we go along. और जब वहां पे पहली बार वो गए, 5 दिन के लिए गए थे, लेकिन परमेश्वर ने कुछ चीजें दिखानी शुरू करी डोनाल्ड को। And there came a day when I had to hear a sermon. That's why I said God doesn't always give you a vision. It was a sermon, and Terry Virgo was preaching, and he said, complete what I have called you to do. Complete, give obedience complete to me. और जब टेरी वर्गो का यहाँ पे सम्मेलन हुआ था, वहां पे वो बांट रहे थे, तो उन्होंने ये बांटा कि आओ और पूरा करो जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। And then God put this up and said, you haven't gone for 2 months. और फिर परमेश्वर ने ऐसा बोला कि हाँ तुम 2 महीने के लिए नहीं गए हो अभी तक। And I said, God, I'm sorry. I will go and come. My business. It's about the king's business. और फिर डोनाल्ड ने ऐसा परमेश्वर से कहा कि हाँ परमेश्वर मैं 2 महीने के लिए जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे व्यवसाय के बारे में नहीं है, ये आपके व्यवसाय के बारे में है। And I think the first person I shared this was with Nigel, and like he's doing this like this. He did like this, and I don't know what it means. और जब पहली बार इन्होंने किसी से बांटा, वो नाइजल थे, और नाइजल ने इस तरह से मुस्कुरा के कहा उसका मतलब नहीं पता था क्या है। We like to sing this song where you think there may be no way, God will make a way, but we must recognize that God makes a way. और हम कई बार ये गीत गाते हैं कि आप परमेश्वर रास्ता निकालेगा, लेकिन हमें ये बात को जानना है कि परमेश्वर रास्ता निकालते हैं। And so what I want to leave with you this morning, if I shared all this, was look, God has spoken things into your life. He's made promises. He's told you things. He said things, and you may be thinking, can't be, it's too far away. और ये मैं आपसे इसलिए बांट रहा हूं क्योंकि हम सबके जीवनों में परमेश्वर ने कुछ कुछ बात की है, हमें कुछ बताया है, हमसे कुछ बोला है, वादा किया है, और परमेश्वर कहता है कि मैं वो सारी चीजों को तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। Some they may be for your own personal thing, like okay, teach your children a musical instrument. कुछ चीजें हो सकता है कि आपके व्यक्तित्व जीवन के लिए हो, जैसे कि आपके बच्चों के लिए हो, परमेश्वर ने कहा कि उनको एक वादन सिखाओ। Or do something. Or some will be, he's looking, I'm sending you here, I want you to go there, and you think it's all there, but Lord, this can't be. I'm not like that. और कई बार चीजें जो होंगी वो परमेश्वर अपने राज्य के लिए बोलेगा और आपको कहेगा कि तुम्हारे को मैं यहाँ जाने को बोल रहा हूँ, वहां जाने को बोल रहा हूँ, तुम ये करोगे, और हम सोचेंगे परमेश्वर मैं इसके काबिल ही नहीं हूं। What seems impossible to man is possible with God. और जो इंसान को नामुमकिन लगता है परमेश्वर के लिए वो मुमकिन है। Write those words down. Bring them to mind from time to time. उन शब्दों को लिख लो, उन्हें वापस लेके आओ, सामने लेके आओ बार बार। And as life unfolds, look for the signs. और जैसे जीवन आगे बढ़ता है उन चिन्हों को देखना शुरू करो। You will see the signs if you will look, and you will walk with him. You're in the king's business. और जब आप परमेश्वर के व्यवसाय के लिए आगे बढ़ेंगे, उसके लिए चलेंगे, तो आप उन चिन्हों को देख पाएंगे। And your destiny will unfold, and you will find yourself walking with God step by step together. और परमेश्वर जैसे आगे के जीवन का खुलासा करेगा, और आप देखोगे कि आप परमेश्वर के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हो। You know, when I was before the 2 months, I mean the last trip, the few people I met, I remember God said few things to me. I'm not going to tell you about Dipshika and Emmanuel. That is their story. और कुछ बातें जब जाने से पहले लोगों ने बताई, मैं इमैनुअल और दीपशिका के बारे में नहीं कहूंगा, वो उनकी कहानी है। But I definitely want you to know, when God speaks something to you or shows you a person, take heed. और जब परमेश्वर आपको उस पर ध्यान दीजिए। And so, I mean, the first time I went,
I didn't see wonders and signs and miracles. I saw depression. और जब मैं पहली बार वहां पे गया तो मैंने वहां पर ऐसे चिन्ह और चमत्कार नहीं देखे। मैंने देखा वहां पर बहुत निराशा थी। मेरे जीवन के अंदर, मेरे दिल के अंदर, I don't know about the city. और डोनाल्ड के दिल के अंदर ऐसी निराशा थी। So I was living in a long room all alone. The streets outside were sad and everything would seem sad. And I was feeling even more sad and saying, God, why have you brought me here? और जहां पर मैं रह रहा था वहां पर वो घर जो आगे की वहां पे गलियां थी वो सब वहां पर काफी दुख महसूस हो रहा था। और परमेश्वर से इस तरह पुकारा कि परमेश्वर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। God, I'm not a young man or get excited anymore. I feel old and I feel even more old over here. और परमेश्वर मैं एक ऐसे जवान इंसान नहीं हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं और मुझे और बुढ़ापा महसूस हो रहा है यहाँ पे। Look, if all this is a mistake, I'll go home. I don't mind saying I made a mistake. और ठीक है, अगर मेरे को घर वापस जाना पड़े और कहे कि मैंने गलती करी है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है इस बारे में, बोल सकता हूं कि मैंने गलती करी है। And then one thought came into my heart: is there a work among the poor over here? और Just a thought. एक सोच जो डोनाल्ड के दिल में आई कि इन्हें गरीबों के बीच में काम करना है। This was on the day before I was to leave. और ये एक दिन पहले जब डोनाल्ड यहाँ पर वापस आने वाले थे उस दिन इनके दिल में परमेश्वर ने डाला। First trip. पहली बार जब वहां गए थे। हाँ. And I asked Subhashish, she was with me. I said, Subhashish, do you have a work among the poor over here? और फिर सुभाशीष जो वहां पर कलकत्ता में रहते हैं उनसे पूछा डोनाल्ड ने कि क्या यहाँ पर ऐसा कोई गरीबों के बीच में हम काम करते हैं क्या। And he said, no, I started, I love to have this with orphans. I have an NGO. I started an NGO, but I can't carry it on. But I've given it to some young lady who, has come under that and is doing her work. और फिर जब उन्होंने सुभाशीष ने बताया कि मैं ये सब नहीं करता हूं लेकिन मैंने ये जो एनजीओ का काम है एक लड़की को दे दिया है। Okay. And I said, didn't sound very exciting again. और वही जो थी कि वो बात बहुत उत्साहित नहीं लगी। I said, okay, can we go and see it? और फिर उन्होंने कहा कि क्या हम जाके देख सकते हैं। And that is the time, now you can change it. That is the time when I met this young lady. Her name is Deepshika. और उस समय जब डोनाल्ड वहां गए तब वो मिले दीपशिखा से। And Deepshika said only one thing that made me realize this was of God. और दीपशिका ने सिर्फ एक ही बात बोली जिससे डोनाल्ड को समझ में आया कि ये परमेश्वर की तरफ से है। She was talking about how she does work among the poor, how she cares for it, how she has to run around. She had a job with one NGO, but she was running this NGO. और किस तरीके से वो परमेश्वर की बातें कर रही थी और परमेश्वर ने उनके जीवन में ये किया है और वो किसी और एनजीओ के लिए काम कर रही थी लेकिन इस एनजीओ में आके यहाँ पे सेवा कर रही थी। And at that time she didn't have funds to pay for this NGO. She had no money to pay her teachers. और इस समय पर ये जो एनजीओ वो चला रहे थे उनके पास पैसे नहीं थे ये चलाने के लिए और वो टीचर्स को पैसा देने के लिए। And I asked her one question. I said, then how do you manage? और फिर डोनाल्ड ने एक सवाल पूछा कि तुम इसे काम कैसे चलाते हो। And she said, the salary I get from this NGO, I pay the salary to the teachers here. और उन्होंने ऐसा कहा कि जो तनख्वाह मेरे को इस एनजीओ से मिलती है मैं दूसरे एनजीओ में जाकर वो पूरी की पूरी तनख्वाह लगा देती हूँ। जो सैलरी मुझे वो एनजीओ से मैं जब काम करती हूँ वो लेती और मेरे एनजीओ में जो टीचर लोग हैं उनको वो पैसा देती हूँ। मैं अपने पास कुछ नहीं रखती। She doesn't keep anything to herself. So I said, how do you travel? And I take the bus, I take the train, I walk. तो उन्होंने पूछा कि तुम सफर कैसे करते हो। उन्होंने बोला कि मैं ट्रेन पे जाती हूँ, बस पे जाती हूँ या फिर मैं चलती हूँ। It did something in our heart. और फिर कुछ चीज पैदा हुई डोनाल्ड के दिमाग में, दिल में। I thought I met a daughter. और फिर उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें एक ऐसी बेटी मिली। Okay, I met a daughter. And it reminded me of Acts 26:14. और फिर उन्हें प्रेरितों के पुस्तक 26:14 की ऐसे याद आई। And Paul went to the river and he met this woman dyeing linen in purple. और पौलुस जब वहां उस नदी के सामने जा रहे थे तो उन्हें एक ऐसी लेडी मिली, वहां पे ऐसी औरत मिली। And she was from Thyatira and she was here in this city and she opened a door. और थाइट्रिया से जो कि वहां पे था वहां से थी लेकिन वो इस समय पौलुस के सामने खड़ी थी और वहां पर उन्हें एक द्वार खोला। Are you looking for God's guidance into the plans you are working? God sends many Lydias along your way. क्या आप परमेश्वर की बातों को इस तरह से देखते हैं? परमेश्वर आपके जीवनों में भी बहुत बार ऐसी लिडिया को भेजता है। What verse is that? That is not the verse. Acts 16, Acts 26:14. Sorry. Yeah, that's
Did I say 16? I'm so sorry. Acts 26:14. Sorry, is it? I've got 26 on mine. Why did I Yeah. put 16:14? Sorry. Acts 16:14. Change it to 16:14. I put a mistake. Yeah. Okay, so there's the Lydia on the, and you know, sometimes we don't know what to do, but God gives you divine appointments with people. और कई बार आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना है, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसे मौके देता है, अलौकिक मौके देता है, अपॉइंटमेंट देता है किसी के साथ, मिलने का अवसर देता है अलौकिक तरीके से. and you meet that person and you talk and suddenly something happens. और फिर आप उस इंसान से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और फिर अचानक से कुछ होता है. May not be immediately because our Paul has to go to jail first and come out, then he goes to a house. In this same chapter, I'm not going through the chapter. और इस पुस्तक में हम अभी जान नहीं रहे, लेकिन He has to go to jail first, then he goes to a house. इसमें पौलुस को पहले जेल जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद वो दूसरी जगह पे जाएगा. And so value and treasure the people you meet. और इसलिए जो परमेश्वर लोग आपके जीवन में देता है उनका आदर कीजिए, उनको संभाल के You रखिए. know, our call and our people going is not about going to Calcutta or Malad or wherever you want, Delhi or Punjab or here or there or America. It's about going to make disciples. और ये इस बारे में नहीं है कि हम कलकत्ता जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जाओ और मेरे लिए शिष्य बनाओ. Wherever they may be. जहां पर भी हो. You might be next door to you. आप अपने घर के बाजू में भी बना सकते हैं. Okay. Most proper people have to go to Jerusalem, Judea. Everyone's looking about going places. Yes, there is a going places, but it's about making a disciple or meeting someone you can have an impact upon and also who impresses something on your life. और जिस तरह से हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जैसे लिखा है कि जेरूशलम या जूडिया और फिर समरिया तक जाना है, सब लोग जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि शिष्य बनाने के बारे में, वो तुम्हारे आसपास भी लोग हो सकते हैं, वो तुम्हारे पर क्या असर लाते हैं वो भी एक बात है. And so mission may involve traveling, but mission is about people. और मिशन जो है आपको सफर करने पे मजबूर कर सकता है, लेकिन मिशन सफर के बारे में नहीं है, मिशन लोगों के बारे में है. It's about making friendships and relationships and pursuing them and being with the people, caring into it, investing into those relationships. And one day from that rises, that small seed rises into the tree that spreads out. और मिशन जो है उस बारे में है कि आप लोगों में आप व्यवस्थित हो जाएं और उनके जीवनों में कुछ डालें, उनके जीवनों के साथ देखें, उनके साथ बढ़ें, और एक दिन वो जो छोटा सा बीज है वो एक बड़े पेड़ के जैसे बन जाए. And this is not disciples that follow you or listen to you, but these are disciples who get more in love with Jesus because of your relationship with them, and they become disciples of Jesus and are wanting to do more for him. और ये वो चेले नहीं बनते जो आपके चेले बन जाते हैं, पर ये वो चेले बनते हैं जो यीशु के चेले बनते हैं, उसके सामने झुकते हैं और उसकी बातों को और उसके दिल की बातों को करते हैं. Be willing to meet new people. और नए लोगों से मिलने के लिए ओपन रहिए, खुले रहिए. You never know who is the gold that God will knit into the tapestry of your life. और आप नहीं जानते कि ऐसा कौन है जिसको सोने की तरह परमेश्वर ने रखा है कि वो आपके साथ वो जुड़ जाएगा. And never try to plan and prepare. Oh, they will do this. I can see them doing this. Maybe they can do it. God will tell them. You bring them to the next step what Jesus wants them to come to. और ऐसा अपने जीवन में प्लान मत करिए कि वो ये करेंगे और मैं देख सकता हूं कि शायद वो ये करेंगे. हाँ, वो कर सकते हैं, हो सकता है कि उनमें काबिलियत हो, लेकिन परमेश्वर क्या करना चाहता है उस पे डिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है. Okay, one small comment to this young lady was, I love to see a work of the church. Sorry, a work among the poor linked to the church. और इनका एक बात जो दीपशिका ने कही कि नहीं, I said to her. अच्छा, डोनाल्ड ने कही दीपशिका को कि उनको एक ऐसी जगह ऐसा देखना है काम जो गरीबों से जुड़ा हुआ है और कलीसिया उसका देखभाल कर रही है. कलीसिया से भी जुड़ी है. She was doing her own ministry. क्योंकि वो अलग से अपनी ही सेवकाई कर रही थी. And she heard it. और उन्होंने इस बात को सुना. Next time I visited, she had started a women and child fellowship. और अगली बार जब डोनाल्ड उनसे मिले तब उन्होंने एक औरतों का और बच्चों का गैदरिंग शुरू कर दिया था. With all her understanding, whatever she knew, church had to be linked to what she was doing. She started a work. Just one comment. That is how
through relationship, you disciple people. और सिर्फ एक बात डोनाल्ड ने जो बोली थी, उससे उन्होंने ये बात को समझ लिया कि जो भी काम वो कर रही है उस एनजीओ में, उसे कलीसिया से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। इस तरीके से हम शिष्यत्व में लोगों को ला सकते हैं। You know, like Nathaniel, we can be very wise. और नथानियल की तरह हम बहुत ही And we विवेकशील हो could सकते be हैं, right. और हम सोच सकते हैं कि सही है। And we can say, can anything good come out of Nazareth? और Why हम- should we go and meet this person? और हम बोल सकते हैं कि नासरी से क्या कुछ अच्छा आ भी सकता है, हम क्यों जाएं इससे मिलने। But there's a nice thing about Nathaniel. He's also humble. He's willing to go और and meet. नथानियल के बारे में एक और अच्छी बात ये भी है कि वो दीन है और वो जाने के लिए तैयार है। And so when Andrew says, come and see, he goes and he meets. और जब वो कहता है कि आओ और देखो, तो वो जाता है देखने। And so we must have a faith to pursue relationships, even though we are not sure where it's going. We have doubts about a person. Okay, there may be even valid doubts, but don't give up. और people. ऐसा विश्वास हमारे दिलों में होना चाहिए। हो सकता है कि हमारे को जो दिख रहा है वो सही नहीं है, लेकिन हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगा, से कुछ करेगा। Your perhaps faith, perhaps God's in this, let me go, will see fruit coming out of the relationship. और जब Contacts being built, which God brings across you, which brings life-changing stories. और जब हम ऐसा विश्वास रखते हैं, जोनाथन के जो कहता है कि हो सकता है शायद परमेश्वर हमारे साथ है, तो वो शायद वाला जो विश्वास है वो हमें तैयार करता है कि हम नई नई चीजें परमेश्वर के लिए कर पाएंगे और देख पाएंगे। So go out in the faith that God has many Lydias that you need to meet on the ways, on the pathway, So- along the river banks or wherever you go. And there are relationships he wants to build in your lives. तो इस विश्वास से आगे जाइए कि आपके जीवन में भी परमेश्वर जो है कई सारी लिडिया जो है वो लेके आएगा और आपको परमेश्वर दिखाएगा कि आगे क्या करना है। All right. And so I'm going to, because the time's run out, so I'm going to just end with the second point and we'll carry it on next week. और जो है कि अभी समय जा रहा है, इसलिए एक और जो है पॉइंट हम बताएंगे, फिर हम अगले हफ्ते इसको कंटिन्यू I करेंगे। want to leave these lines with you. मैं आपके साथ ये शब्दों को छोड़ना चाहता हूँ God is the planner. कि परमेश्वर वो हैं जो हमारे लिए सारे योजनाएं बनाते हैं। हमारे लिए नहीं, सारी योजनाएं। सारी योजनाएं परमेश्वर बनाते हैं। God is the builder. परमेश्वर वही है जो आकार देते हैं, सब चीजों को बनाते हैं। God knows what he is doing. परमेश्वर जानते हैं कि वो हमारे जीवनों में क्या कर रहे हैं। You and I need to be open in the spirit as we meet and relate with people he brings across our path. हमें और आपको अपने दिलों में ऐसा खुला रहना है और जानना है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में किन को लेके आ रहे हैं और उनके द्वारा क्या करना चाहते हैं। We are a going people who gather a lot of other people along as we go. हम जाने वाले लोग हैं और हम जाते जाते बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ते चलते हैं। And so with these 2 points, you are about the king's business. और ये दो बातें जो हमने आज करी, वो पहली चीज है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह जो राजा है उसके व्यवसाय के बारे में है। Do not take prophecies that came and this has not happened. 20 years have gone by, 10 years. It's not for you to know the times and the dates. He will bring it about when he is ready. But treasure it, think about it, pray about it. और ऐसा मत सोचिए कि हाँ परमेश्वर ने ऐसी भविष्यवाणी 20 साल पहले करी थी, अभी तक ये नहीं हुआ। हताश मत होइए, क्योंकि आप समय को नहीं संभालेंगे, परमेश्वर उस समय को देखेगा। And finally, trust God as you meet people. Whether you like their face or you don't like their face, God likes their face. Relate. और आखिर में Amen. परमेश्वर पर भरोसा रखिए कि परमेश्वर ने किसी इंसान को आपको दिया है। हो सकता है कि आपको उसकी शक्ल पसंद ना हो, लेकिन फिर भी इस बात को जानिए कि परमेश्वर ने उस इंसान को आपके जीवन में दिया है और वहां से वो कुछ करने जा रहे हैं।